مشکل حالات سے نکل آئے، اچھا وقت آنے والا ہے۔ وزیر اعظم نے نوید سنا دی، کہتے ہیں کہ مخالفین بھی حیران 4% گروتھ کیسے ہو گئی۔ اللہ کا کرم ہے، ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں۔ ملکی اناج بیچنے سے معاشی ترقی نہیں ہوتی، ہمیں ایکسپورٹ پر توجہ دینی ہوگی۔ سرمایہ کار وہاں آتا ہے جہاں اسے منافع ملے۔ دوست ممالک فنڈنگ نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ حکومت کے پہلے 1.5 سال زندگی کے سب سے مشکل سال تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ناقابل برداشت ٹیکسز سے خزانہ بھرنے کا دعویٰ معاشی ترقی نہیں کہلاتا۔ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کی پارلیمان سے منظوری کو ناکام بنائیں گے۔ بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہر بجٹ سے پہلے عمران خان اعلان کرتے ہیں یہ سال ترقی کا ہوگا۔ عوام دشمن حکومت عوام دوست بجٹ نہیں بنا سکتی۔ عام آدمی کی جیبوں سے پیسہ نکال کر خزانہ بھرنے کا دعویٰ کارنامہ نہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اچانک معیشت کی رفتار کیسے تیز ہو گئی، میں نے 3 اپریل 2019 کو نیوز کانفرنس میں بتایا تھا کہ معیشت کی بہتری میں 2 سال لگیں گے۔ عمران خان حکومت نے واضح حکمت عملی ہے کہ معیشت کو دیر پا ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ ہم نے فوری مقبولیت کے فیصلے نہیں کرنے۔ لاہور میں آج اور کل لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری مراکز اور مارکیٹس بند، پیٹرول پمپس، تنور اور ڈیری شاپس کھلی رہیں گی۔ انتظامیہ کی جانب سے پابندی کے باعث ریسٹورنٹ بھی بند رہیں گے۔ بین الصوبائی اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ بھی معطل۔ پاکستان میں کرونا مزید 73 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 20,680 ہو گئی۔ مزید 2,455 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 24 گھنٹے کے دوران 55,442 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 4.42% رہی۔ پاکستان میں 50 لاکھ سے زائد لوگوں کی ویکسینیشن۔ آج سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن کا فیصلہ۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ جلد رجسٹر ہوں اور ویکسین لگوائیں تاکہ بندشیں مزید کم کر سکیں۔ آپ اپنی زندگی آزادی کے ساتھ کورونا کے خوف کے بغیر گزار سکیں۔ پاکستان کی ترقی کا سفر تیز تر ہو۔ بھارتی کرونا ویرینٹ پاکستان پہنچ گیا، وزیر قومی صحت نے تصدیق کر دی۔ وزارت صحت کے مطابق جنوبی افریقی ویرینٹ کی 7 اور بھارتی قسم کی 1 کیس کی تصدیق ہوئی۔ دنیا بھر میں کرونا سے 35,37,000 ہلاکتیں، 16 کروڑ 12 ہزار مریض۔ امریکہ میں 6,08,000، برازیل میں 4,59,000، بھارت میں 3,22,000، میکسیکو میں 2,22,700، روس میں 1,20,000، فرانس میں 1,09,290، برطانیہ میں 1,27,768 اور سعودی عرب میں 7,320 اموات۔ مظفر آباد میں مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی۔ کوہالہ کے قریب زامن آباد کے مقام پر مسافر وین کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق اور 13 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حادثے کا شکار وین راولپنڈی سے چکوٹھی جا رہی تھی کہ تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو گئی۔ زخمی اور لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ دوپہر 2 بجے چٹھا بختاور میں ہونے والے اجلاس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ حکومت مخالف احتجاجی تحریک اور ملکی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی دورہ کراچی سے متعلق رپورٹ تیار۔ شیخ رشید پیر کو وزیر اعظم عمران خان کو رپورٹ پیش کریں گے۔ رپورٹ میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل کا تذکرہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ خواتین نے ارکان اسمبلی سے ملاقات کی، کہتی ہیں کہ خواتین ارکان اسمبلی کو ان کا جائز حق دیں گے۔ خواتین ارکان اسمبلی کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
तरक्याती मंसूबों में खवातीन अरकान असम्बली के मशवरों को भी अहमियत देंगे। कोई मुआशरा खवातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिंध हुकूमत मसाइल के हल में नाकाम हो गई। कराची से कश्मीर तक इलाका महरूमियों का शिकार हो गया। कराची की आबादी ज्यादा और पानी की फराहमी कम है। सिंध की आबादी को सिर्फ 1.5% पानी मिलता है। सिंध के लोगों का 40% नौकरी का कोटा भी नहीं दिया जा रहा। पानी के मसले पर हमेशा सिंध के साथ नाइंसाफी हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। कहते हैं मुल्क में जमहूरियत होती तो ये हालत ना होती। 3 दरिया बेच दिए गए। चश्मा झेलुम लिंक कैनाल दरिया के बराबर है। ग्रेटर कैनाल अंग्रेज ने बंद कराई क्योंकि सिंध का पानी ले जाएगी। पानी सियासी नहीं मुआशी इशू है। इस मसले पर पूरा सिंध हमेशा एक रहा। पंजाब में पानी की तकसीम पर सिंध के तहफ्फुज़ात। पंजाब का न्यूट्रल मॉनिटर्स बिठाने का मुतालिबा। मोहसिन लगारी कहते हैं कि बदएतमादी खत्म करना चाहते हैं। पानी का बहाव कम होने से पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब हुकूमत 13 छोटे डैम बनाने जा रही है। पंजाब की नहरों में 9% और सिंध की नहरों में 27% पानी जाया होता है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फहमीदा मिर्जा कहती हैं कि सिंध हुकूमत ने गरीबों का पानी दूसरी तरफ मोड़ा। वाटर डायरेक्टर मुनव्वर तारपुल के रिश्तेदार हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फहमीदा मिर्जा ने कहा कि सिंध हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं। अदालतें मामले को देखें। गैर कानूनी अहकामात सिंध का मुआशी कत्ल है। वजीर आजम इमरान खान एतवार को अवाम से बराह रास्त फोन पर बात करेंगे। अवाम से बराह रास्त बातचीत की ये चौथी नशिस्त होगी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि वजीर आजम 30 मई को दोपहर 3 बजे अवाम से फोन पर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात। PDM सरबराही इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और आइंदा बजट इजलास से मुतालिक अमूर पर बातचीत। पीपल्स पार्टी और ANP के रवैयों और आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर। मौलाना फजलुर रहमान के और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा किसी पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी पार्टी को लाए या निकाले। मेरी कोई जाती राय नहीं। मेरी दावत का PDM से ताल्लुक नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि बदकिस्मती है कि कौम पर मुसद्दत लोग नाअहल हैं। हुकूमत इदारों को तबाह कर रही है। वजीर इत्तिलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ पहले अपोजिशन को इकट्ठा करने की बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। कश्ती भंवर में है। अगर इससे निकले तो मौलाना फजलुर रहमान का कंधा तो और इंतशार के लिए हाजिर ही है। अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने के लिए PDM जैसे चूचू के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM गैर मौसर और गैर फाल। इन दोनों जमातों के बगैर हम ख्यालों का इज्तिमा तो हो सकता है मगर PDM का इजलास नहीं। हमने जमहूरियत की खातिर बदतरीन मुखालिफिन के साथ भी इत्तेहाद किए। मुत्तहदा अपोजिशन IMF मुलाजमीन बजट नामंजूर करे। हुक्मरान जमात का आईनी तौर पर जवाज खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क को लूटने और अवाम को धोखा देने वालों का यौम हिसाब करीब आ गया। PTI ने बैड गवर्नेंस और लूटमार में साबिका हुकूमतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अवाम रुल गए। महंगाई ने लोगों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। ज़राई कमेटी के इजलास के बाद बयान में कहा गया कि कोरोना और कारोबारी सूरत हाल देखते हुए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। अगले माली साल में मुआशी नमू में बेहतरी की उम्मीद है। बिजली के निरखों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। अप्रैल में महंगाई की शरह 11% से तजावुज कर गई।
वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत निजकारी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास, विफाकी वज़रा, मुआवने खसूसी, पावर, पेट्रोलियम निजकारी के आला हुकाम की शिरकत। इजलास में नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कमेटी लिमिटेड की निजकारी पर गौर। वजीर खजाना की IPP से मुतालिक अमूर पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेलिना एगलर की मुलाकात। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर भी गौर। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोजा दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद एयरपोर्ट पर इराकी नायब वजीर खारिजा डॉक्टर सालेह और दीगर ने इस्तकबाल किया। वजीर खारिजा इराकी हम मनसब और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईवान सदर में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। जावेद इकबाल ने नैब की सालाना रिपोर्ट 2020 सदर मुमलकत को पेश की और उन्हें कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2020 के दौरान 323.29 बिलियन रुपए की रिकवरी की गई। विफाकी हुकूमत ने हज की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को हज बुकिंग करवाने से रोक दिया। हज कोटा जारी नहीं हुआ, इजाजत मिलते ही हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा। वजारत मजहबी अमूर का ऐलान। पाकिस्तान को मतलूब कलअदम BLA का दहशतगर्द कमांडर कंधार में हलाक। अब्दुल नबी बंगलजई को कंधार में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक किया। सियासी गर्मा गर्मी के साथ मौसम भी इंतहाई गर्म। दर्जा हरारत में इजाफे ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज आंधी की पेशगोई कर दी।